So simply up to here we have discussed that there was a boy whose name was Franz. One morning he woke up, but he didn't want to go to school because his teacher had given him to learn the rules of, yes, and he didn't know even a single word, yes. So in place of going to school, he decided to go enjoy out of the door. आउट ऑफ डोर. उसने डिसाइड किया घर के बाहर जाएगा. एंड ही वुड एंजॉय द डे बाई लिसनिंग द, क्या सुनेगा, यस, चिरपिंग ऑफ बर्ड्स. एंड सेकेंड Persian soldier. दूसरा क्या, यस, ड्रिलिंग ऑफ पर्सियन, यस, ड्रिलिंग ऑफ पर्सियन सोल्जर्स इन द ओपन फील्ड बैक टू द सॉल्ट. Because these things were much more tempting, yes, tempting than the rules of participation. But he had a daily goal, yeah, he had a strength that resisted, yeah, opposed all these ideas, and ultimately he decided to go to. But in this confusion he got late. लेकिन इस confusion में late हो गया. Now he came to the town hall, and when he came to the town hall, what did he see? क्या देखा उसने? He saw a great crowd in front of bulletin boards, है ना? Bulletin board के सामने एक बहुत बड़ी crowd दिखाई दी. And as soon as he saw the crowd, he understood there must be some bad news. Yes, भीड़ देखते ही समझ गया कोई ना कोई बुरी खबर होगी. क्यों समझ गया? Because since last 2 years he was getting all the bad news from there. पिछले 2 साल, yes, पिछले 2 साल से सारी bad news वहीं से आ रही है. So without stopping he moved very quickly. बहुत तेजी से निकला वहाँ से. Who stopped him? किसने रोक लिया था उसे? Blacksmith. Name of blacksmith? Watcher. And what did he say? क्या कहा था उसने? क्या कहा था? Yes. उसने कहा था why are you going so fast, bub? There's plenty of time in your school. And he understood that he was making fun of him. वो समझ गया था मजाक उड़ा रहा है. So without stopping there, he moved fast and he stopped in the little garden of MM. छोटा सा गार्डन था, वहाँ आके रुका. फिर कहता है usually when the school started, कहता है usually जब स्कूल शुरू होता था there was a lot of noise, yes, and the noise was so much that it could easily heard out in the street. यस, आउटसाइड द स्ट्रीट, गली के बाहर तक वो शोर सुनाई देता था, इतना शोर होता था. बट ऑन दैट डे इट वॉज ऑल्सो साइलेंट. और शोर होता किसका था? पहला ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, और दूसरा Repeating the lesson in union. Yes, lessons repeated in unison by keeping their hands over their ears. और तीसरा Teachers ruler rapping on the table. Yes, ruler. Teachers used to rap his iron ruler on the table. तो ये सारी जो आवाज़ें थी मिलके इतना आवाज़ क्रिएट करती थी that the voice could be heard outside in the street. बाहर गली में सुनाई देती थी. But on that day it was just like Sunday morning. उसने संडे मॉर्निंग जैसा था. और वो क्या कह रहा है? आई वॉज कम्प्लीटली डिपेंड ऑन द एटमोसफियर ऑफ द क्लास. यस, एटमोसफियर ऑफ द क्लास जस्ट टू गेट इन विदाउट बीइंग सीन. और अब उसने क्या करा था? थ्रू द विंडो ही पीप्ड इन. खिड़की से अंदर जाके देखा. एंड ही फाउंड, और क्या देखा? ऑल द स्टूडेंट्स वर ऑलरेडी ऑन देयर सीट्स. सारे बच्चे अपने अपने सीट्स पे थे. एंड व्हाट एमएमएल वाज डूइंग? क्या कर रहा? यस, बाय कैरिंग हिज आयरन रूलर ही वाज वॉकिंग अप एंड डाउन. तो कहता नाउ आई हैड टू, क्या बोला था?
I had to open the door and yes, I had to open the door and come in front of everyone. And you can understand how much I Blushed and frightened. blushed and how much, yes, and how much I frightened. लेकिन कहता but nothing happened. MML spoke to me in a very kind and gentle tone. बहुत ही प्यार से उन्होंने मुझसे कहा और क्या कहा था? हाँ वाह, just go and take your seats. We were beginning without you. हम तो तुम्हारी बिना ही शुरू कर. Yeah, and he went there. He took his seat. और सीट पे बैठने के बाद when he controlled over his fear, जब डर पे कंट्रोल कर लिया, then he looked up. और जैसे ही उसने ऊपर देखा, he was surprised by seeing the. सबसे पहले क्या देखकर? Yes, dressing sense of MML. Second thing that surprised him was the Backbenchers empty all coat, but and the atmosphere of the class, so serious, so solemn. And the third one, the villagers were sitting over there. Yes, old people were sitting quite like themselves. An old houser had brought an old primary level book. He opened it और उसको खोल के अपने घुटनों पे रखे हुए पढ़ रहा था. यहाँ तक हम लोगों ने कल किया हुआ था. आज हम लोगों को यहाँ से पढ़ना है while I was wondering about it all. यहाँ से पढ़ना है. मिल गया बेटा सबको? ओके बेटा, ओके. तो अब फ्रेंच कहता है while I was wondering about it all. While I was wondering से मतलब थिंकिंग वी कैन से. दिस वाइल आई वॉज थिंकिंग अबाउट इट ऑल. जब मैं सारी चीज़ों के बारे में सोच रहा था. और सारी चीज़ें कौन कौन सी चीज़ें? वाई MML वॉज इन ए ब्यूटीफुल ड्रेस. वाई द क्लास इज सो साइलेंट. वॉट द ब्लेजर्स आर डूइंग हियर. कि ये सब यहाँ क्या कर रहे हैं. कहता जब मैं ये सारी चीज़ों के बारे में सोच रहा था तभी क्या हुआ? MML माउंटेड ए चेयर. मैंने देखा कि MML ने क्या किया? He has mounted a chair means he has taken a chair. वो गए अपने चेयर पर बैठ गए. And in the same grave and gentle tone which he had used to me. And in the same grave and gentle tone which he had used to me. मतलब उसी टोन में उन्होंने बोला जिस टोन में उन्होंने मुझसे बात की थी. कब? जब फ्रेंच आया था तो कैसे बात की थी? टोन कैसी थी? बहुत, हाँ, बहुत ही काइंडली थी. तो उतने ही काइंड, उतने सॉफ्ट, उतनी जेंटल टोन में उन्होंने कहा और उन्होंने बोलना शुरू किया. उन्होंने कहा माई चिल्ड्रन, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू. उनका डियर चिल्ड्रन, द लेसन विच आई एम गोइंग टू गिव यू टुडे इज माई लास्ट लेसन. प्यारे बच्चों, जो लेसन मैं आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ वो मेरा कौन सा लेसन है? वो मेरा लास्ट लेसन है. और लास्ट लेसन क्यों? उसका रीज़न उन्होंने दिया. एक्चुअली द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ एल्सेस एंड लोरेन. उन्होंने कहा द लेसन विच आई एम गोइंग टू गिव यू टुडे इज माई लास्ट लेसन. जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो लास्ट है. और लास्ट इसलिए है बिकॉज टुडे आई गॉट एन ऑर्डर. आज मुझे एक ऑर्डर है. ऑर्डर और कहाँ से मिला? बर्लिन से मिला है. टुडे आई गॉट एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन and according to that order, और उस ऑर्डर के हिसाब से in all the schools of Alsace and Lorraine only German language would be taught. तो आज मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूँ फ्रेंच लैंग्वेज का वो लास्ट लेसन है. क्योंकि आज मुझे एक जर्मन से, बर्लिन से एक ऑर्डर आया है और उस ऑर्डर के हिसाब से जितने भी स्कूल्स हैं एल्सेस और लोरेन के, उन सारे स्कूल्स में केवल और केवल कौन सी लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी? जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई. यस, जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी. द न्यू मास्टर कम्स टुमारो. उसने कहा इसीलिए जो द न्यू मास्टर ऑफ विच लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज का नया मास्टर? यस, जर्मन लैंग्वेज का जो नया मास्टर है ही वुड कम टुमारो. कब आ जाएगा? वो कल आ जाएगा. तो आपका जो नया टीचर है वो कल आ जाएगा. दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन. तो कल आपका नया टीचर आ जाएगा, कल से वो पढ़ाएगा. और इसीलिए टुडे आई एम गोइंग टू गिव यू माई लास्ट फ्रेंच लेसन. आज जो मैं फ्रेंच लैंग्वेज का आपको लेसन पढ़ा रहा हूँ ये मेरा कौन सा लेसन है? लास्ट लेसन है. Yes, I want you to be very attentive, and that's why I request you all.
और इसीलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ दैट यू ऑल हैव टू बी वेरी अटेंटिव, कि आप सबको कैसा रहना है, बहुत ही अटेंटिव रहना। अटेंटिव से मतलब ध्यान, अटेंशन, यस बिल्कुल, ध्यान से बहुत अच्छे से पढ़ना। तो उसने कहा इसीलिए क्योंकि आज आपकी ये लास्ट लेसन है, तो मैं ये चाह रहा हूँ बहुत ही अटेंटिवली, बहुत ही ध्यान से, एकाग्रचित होकर आप इस चैप्टर को, इस लेसन को पढ़ें। तो कहता व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। कहता व्हाट अ थंडर क्लैप, व्हाट डू यू मीन बाय थंडर क्लैप? थंडर स्टॉर्म क्या होता है भाई? थंडर किसको बोलते हैं? डरना नहीं, थंडर, हाँ थंडर ऐसे होता बिजली गिर जाना, जैसे नहीं बोलते हम लोग एकदम तुमने तो बिजली गिरा दी हमारे ऊपर। बिजली का मतलब होता है कुछ शॉकिंग हो जाना। कहता व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी मींस आई वाज कंप्लीटली शॉक्ड आफ्टर लिसनिंग दिस। जब मुझे ये पता चला दैट इट वाज माय लास्ट फ्रेंच लेसन, जब मुझे पता चला ये मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन है, तो ऐसा लगा जैसे मेरे ऊपर बिजली गिर गई हो। मीन्स आई वॉज कम्प्लीटली शॉक्ड। और वो कहता ओह द रैचेज दैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। और अब उसे सारी बातें समझ में आने लगी। ही अंडरस्टूड व्हाई देयर वॉज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड। समझ में आ गया बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ की होती है। तो कहता ओह द रैचेज। रैचेज का मतलब समझते हो? रैचेज का मतलब विक्ड पर्सन। विक्ड से मतलब दुष्ट जैसे बोलते हैं, है ना। तो अच्छा, तो उसे अच्छा दुष्टों ने ये न्यूज़ लगाई हुई है टाउन हॉल पर, मतलब। और ये क्वेश्चन जो है बेटा ये 2-3 बार बोर्ड में पूछा गया है। वॉट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, या इसको ऐसे व्हाई देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड, है ना। तो क्राउड क्यों थी, क्या आया हुआ था? An order which has come from Berlin, and according to that order in all the schools of Alsace and Lorraine only कौन सी लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी? जर्मन लैंग्वेज वुड बी टॉट। यस, तो ये कई बार पूछा जा चुका है बोर्ड में, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो वही कहता अच्छा, तो दोस्तों ने ये न्यूज़ लगाई हुई थी टाउन हॉल पर कि कल से यहाँ पर कौन सी लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी? जर्मन पढ़ाई जाएगी। दैट्स व्हाई देयर वाज सो मच क्राउड, इसीलिए वहाँ पर इतनी भीड़ थी। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, और से लगा वो दिस मीन्स दैट द लेसन विच आई एम गोइंग टू गेट टुडे इज माई लास्ट लेसन। इसका मतलब तो ये हुआ कि जो लेसन आज मैं पढ़ने जा रहा हूँ मेरा कौन सा लेसन है? तो मेरा तो लास्ट लेसन है। और इसका मतलब क्या हुआ? अभी तो मुझे क्या, आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट मतलब मुझे तो बड़ी मुश्किल से यही पता है कि अभी लिखा कैसे जाता। मीन्स आई डिडंट नो हाउ टू प्रॉपरली राइट फ्रेंच लैंग्वेज। मुझे तो अच्छे से फ्रेंच लिखने भी नहीं आती। जैसे होता है ना, पूरे साल घर वाले कहते पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, तब नहीं सुनते। जब रिजल्ट हाथ में लेते हैं अपना, तब दुख लगता है यार पढ़ लेते, है ना, तभी लगता है ना। तो यही था, अभी तक पढ़ाया जा रहा था तो नहीं, और आप जब कहा कि अब नहीं पढ़ाया जाएगा तो अब दुखी हो रहे थे। अभी 1 घंटे पहले यही क्या सोच रहे थे? आज हम स्कूल नहीं जाएंगे, क्या करेंगे? हाँ, पक्षियों की चिरपिंग को सुनेंगे, स्कूल बंद करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। यही तो होता है, केवल रिजल्ट के टाइम ही बस थोड़ा सा क्षणिक दुख होता है उसके बाद हम लोग फिर अपने मस्त हो जाते हैं। तो आज ना ही वॉज फीलिंग सैड। वो कह रहा था अरे ये मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन है एंड आई डिडंट नो इवन हाउ टू प्रॉपरली राइट दिस लैंग्वेज, और अभी तो मुझे इस लैंग्वेज को लिखना भी नहीं आता है। एंड आई शुड नेवर लर्न एनी मोर। और उसका मतलब तो ये हुआ दैट नाउ आई वुड नॉट गेट अपॉर्चुनिटी टू लर्न दिस लैंग्वेज एनी मोर, कि अब मुझे इस लैंग्वेज को पढ़ने का और ज़्यादा मौका भी नहीं मिलेगा। इसका मतलब आई मस्ट स्टॉप हियर देन। इसका मतलब तो यही हुआ कि अब मेरा फ्रेंच लैंग्वेज सीखना यहीं पर बंद हो जाएगा, क्योंकि अब कल से कौन सी लैंग्वेज? कल से जर्मन आएगी, तो फ्रेंच सीखना यहीं, हाँ फ्रेंच सीखना यहीं पर, फिर फिनिश, खत्म। ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, नाउ आई वॉज फीलिंग सॉरी।
अब मैं बहुत ही सॉरी फील कर रहा था। किस लिए? फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन। सर ये आज तक मैंने पढ़ाई क्यों नहीं करी, मैं उसके लिए सॉरी फील कर रहा था। और मैं सॉरी फील कर रहा था फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, कि पढ़ाई की जगह मैंने कई बार क्या किया, चलो आज जंगल में जाके पक्षियों के अंडे ढूंढेंगे। कई बार मैंने उनके एग्स को सर्च किया। और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, या कई बार मैंने क्या करा, स्लाइडिंग ऑन द सार। सार मतलब जो स्लाइडर होता है ना, पिकनिक बनाया, पार्क में पहुंच गया, स्लाइडिंग करता रहा, स्कूल नहीं आया, तो मैंने खूब बंक किए। अगर मैंने उन बंक करने की जगह स्कूल आके पढ़ाई करनी होती तो शायद आज मुझे ये लैंग्वेज आती होती। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ नॉइसेंस अ व्हाइल अगो, क्योंकि इस चैप्टर में यही तो बताया गया है दैट हाउ इट अफेक्टेड द पीपल। तो अफेक्ट हुआ फ्रेंच या नहीं हुआ? एमएमएल अफेक्टेड है या नहीं? जो बहुत ही स्ट्रिक्ट थे, हमेशा पनिश करते थे, उन्होंने आज पनिश किया लेट कमिंग पर, डांटा, कैसे बात की, बहुत ही बहुत ही काइंडली बात की। और ये जो हमेशा बंक कर रहे थे, आज उन्हें बंक करने का अफसोस हो रहा था, पछतावा हो रहा था। मौका तो था लेकिन उसने मौका नहीं लिया, वो पछता रहा था कि मैंने ऐसा क्यों किया। और नाउ ही वॉज फीलिंग सॉरी फॉर नॉट गेटिंग इट्स लेसन्स, अपनी पढ़ाई ना करने पर सॉरी फील कर रहा था। और अब देखिए उसका एटीट्यूड बुक्स को लेके कैसे चेंज हुआ। कहता माई बुक्स दैट इट सीम्ड सच अ नॉइसेंस अ व्हाइल अगो। कहती माई बुक्स, कहते ये जो मेरी बुक्स है ना, दैट सीम्ड टू मी सच अ नॉइसेंस। नॉइसेंस जानते हैं उसको बोलते हैं, अ प्रॉब्लमैटिक सिंपली वी कैन से दैट जस्ट अ लिटिल व्हाइल अगो दीज बुक्स सीम टू मी सच अ नॉइसेंस। कि कुछ समय पहले तक ये बुक मुझे क्या लग रही थी, नॉइसेंस, प्रॉब्लमैटिक एंड सो हैवी टू कैरी। और केवल बकवास ही नहीं लग रही थी, सो हैवी टू कैरी मतलब अननेसेसरी बर्डन, मतलब अननेसेसरी अनावश्यक बोझ। और जिसको मुझे लगता था मैं इस बोझ को नहीं उठा सकता हूँ। वेदर इट वॉज द बुक ऑफ माई ग्रामर, चाहे वो ग्रामर की बुक हो, वो भी मुझे ऐसी लग रही थी। एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, चाहे जो हिस्ट्री थी, इसमें सेंट्स की हिस्ट्री थी, वो सब की सब मुझे क्या लग रही थी, प्रॉब्लमेटिक लग रही थी, अननेसेसरी बर्डन लग रही थी कुछ समय पहले। लेकिन अब क्या हुआ था, वो आर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, लेकिन अब अचानक से पुरानी दोस्त लग रही थी। और ऐसे दोस्त दैट आई कुडंट गिव अप, जिनको मैं छोड़ नहीं सकता था। पुराने दोस्तों को छोड़ देते हैं क्या? नहीं, कई बार क्या होता है, आपके जो दोस्त होते मम्मी, उसने हमारे बच्चे को बिगाड़ के रख दिया, आज के बाद तुम उसके साथ मत दिख जाना, घर वाले मना करते हैं ना। और आप क्या, अरे मम्मी उसके साथ हम बिल्कुल नहीं, बहुत बेकार, हम उसके साथ कौन रहते हैं, हम बात भी नहीं करते अब मम्मी के सामने। और जैसे ही घर के बाहर निकलेंगे, हाथ में हाथ उसी से डाला, और ये दोस्ती तो मैंने छोड़ेंगे, यही तो चलता है ना। तो यही तो होता है, हम उनके साथ मम्मी के सामने, पापा के सामने हम बात नहीं करते हैं, लेकिन उसके बाद हम उन्हीं के साथ रहते, यही तो होता है। क्योंकि पुराने दोस्त वो जैसे भी हो, अच्छे हो बुरे हो, वो दूसरों के लिए, हमारे लिए वो केवल हमारे क्या है, दोस्त है बस। और हम उन्हें नहीं छोड़ते। तो वो ये कह रहा था कि आज मुझे ये बुक्स भी क्या लग रही थी, ये मुझे वैसे ही पुराने फ्रेंड्स लग रहे थे, जिनको मैं गिव अप नहीं कर सकता था, जिनको मैं छोड़ नहीं सकता था। एंड एम हैमिल टू, कहता नॉट ओनली द बुक्स, और केवल ये बुक्स ही थोड़ा पुराने दोस्त लग रहे थे, आज मुझे एम हैमिल भी लग रहे थे। जैसे नहीं होता, कभी कभी कोई बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर होता, बहुत मारता है, तो बच्चों को लगता है ये तो बस चले ही जाए, यहाँ से आ रहा है उसको रह, फालतू में खून पीते रहते हैं। तो यही लग रहा था, क्योंकि एम हैमिल भी बहुत ही स्ट्रिक्ट थे। तो कहता जैसे ही मुझे आया तो मेरे दिमाग में ये भी आया दैट एम हैमिल टू, तो सिंपली कहता कि केवल बुक्स ही नहीं, मुझे लग रहा था दैट आई कुडंट गिव अप एम हैमिल टू, कि मैं एम हैमिल को भी नहीं छोड़ सकता था। बेटा आवाज़ आ रही है सबको, गेटिंग माय वॉइस? ओके बेटा, ओके।
तो उसने कहा मुझे लग रहा था दैट आई कुड नॉट गिव अप एम हैमिल टू, कि मैं एम हैमिल को भी नहीं छोड़ सकता हूँ, एंड एम हैमिल टू एंड द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे। और जैसे ही मेरे दिमाग में ये आइडिया आया, देखिए टिल द टाइम वी हैव समथिंग, जब तक हमारे पास कुछ होता है ना तब तक हम इम्पोर्टेंस नहीं देते। और जैसे कोई टीचर है, बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत मारता पीटता है, लेकिन पढ़ाता भी बहुत अच्छा है, तो जब मार पीट दे तब तो लगता है चले जाए, लेकिन जब आप सेंस में होते तब लगता नहीं वो सर अच्छे हैं, वो अच्छे से पढ़ाते होंगे। तो ये हुआ, अभी तक तो लगता था कि वो चले जाए, बट एज सून एज द आइडिया केम टू हिज माइंड दैट इट्स टीचर वाज गोइंग अवे फ्रॉम देयर फॉर एवर, उसे लगा हमेशा हमेशा के लिए उसके टीचर वहाँ से जाने वाले हैं, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन। और इसका मतलब तो ये हुआ कि आज के बाद मैं अपने सर से कभी भी नहीं मिल पाऊंगा। मेड मी फॉरगॉट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वाज। तो क्या हुआ, आई फॉरगॉट ऑल अबाउट हिज रूलर, मैं भूल गया उनके सारे रूलर के बारे में, मतलब हाउ मच ही हैज पनिश्ड मी, कितने उन्होंने मुझे मारा था मैं भूल गया। हाउ क्रैंकी ही वॉज, और कितने क्रैंकी मतलब जैसे नहीं कोई टीचर बहुत गुस्से वाला होता तो आजकल की लैंग्वेज में बच्चे क्या बोलते हैं, चटक जाते हैं ये बोलते तो सनकी, सिंपली भी कैसे क्रेजी। तो कहता मैं भूल गया वो कितने क्रेजी थे, कितने सनकी थे, कितना उन्होंने मुझे मारा था, मुझे लग रहा था कि मैं उन्हें भी नहीं छोड़ सकता हूँ, वो यहीं रुकने चाहिए। और अब उसे सब कुछ समझ में भी आ गया था कि क्यों भीड़ थी, क्यों एमएमएल ने नए कपड़े पहने, अब वही एक्सप्लेन कर रहा है। तो कहता पुअर मैन, तो यहाँ पुअर मैन किसके लिए कह रहा है, एम हैमिल के लिए। और पुअर से मतलब गरीब नहीं, बेचारा, मतलब बेचारा। इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ। वो समझ गया कि उसने ये फाइन संडे क्लॉथ्स क्यों बोला भाई, संडे को एम हैमिल उस दिन कैसे कपड़े पहन के आया था, बहुत अच्छे पहने था ना, हाँ ग्रीन कोट फ्रिल्ड शर्ट ये सब था, अच्छे कपड़े थे। तो उसने कहा, मैं समझ गया कि उसने ये लास्ट लेसन को सम्मान देने के लिए अपने अच्छे संडे वाले कपड़े पहने थे। तो संडे को क्या हम बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं, संडे को तो और पुराने निकाल लेते हैं कपड़े। तो फिर क्यों कहा गया फाइन संडे क्लॉथ्स। क्रिश्चियंस संडे को कहाँ जाते हैं, और जब चर्च जाते बिल्कुल सूटेड बूटेड बिल्कुल अच्छे से जाते, तो वो भी क्रिश्चियन था ना, हर संडे को कहाँ जाता था, चर्च जाता था, और यही यूनिफॉर्म वो कहाँ पहन के जाता था, चर्च पहन के जाता था, इसलिए कहा गया फाइन संडे क्लॉथ्स। तो समझ गया कि अपने लास्ट लेसन को रिस्पेक्ट देने के लिए उसने फाइन संडे क्लॉथ्स पहने हुए थे। एंड नाउ आई अंडरस्टूड व्हाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम। कहता नाउ आई अंडरस्टूड द प्रेजेंस ऑफ विलेजर्स ऑल्सो। अब मुझे ये भी समझ में आ गया कि हमारे रूम में ये गांव वाले क्या कर रहे थे, ये क्यों आए थे। एक्चुअली वो इसलिए आए थे, इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू, इसलिए आए थे क्योंकि वो भी सॉरी फील कर रहे थे, वो भी बहुत दुखी थे। दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, और सॉरी इसलिए फील कर रहे थे बिकॉज नाउ दे कुड नॉट कम टू स्कूल एनी मोर, क्योंकि अब स्कूल में कौन सी लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, और उन्हें कौन सी आती है, तो अब स्कूल आके क्या करेंगे। तो इसलिए दुखी थे क्योंकि अब वो स्कूल नहीं आ पाएंगे। वैसे तो मान लो टीचर था पुराना जो उनकी लैंग्वेज बोलता था तो समझते थे, भाई आप उसी से तो बात करोगे जिसकी लैंग्वेज आप समझ पाए, जो आपकी समझ पाए, भाई ऐसे तो नहीं करेंगे जिसके। तो ये था, एंड इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर्स नो मोर। और दूसरा, पहला तो इसलिए आए थे क्योंकि वो सॉरी फील कर रहे थे, दूसरा इसलिए आए थे इट वॉज देयर वे टू से थैंक यू टू आवर मास्टर। वो किसको थैंक यू बोलने आए थे, मास्टर मतलब एम हैमिल को। क्यों, बिकॉज सिंस लास्ट 40 years ही वॉज देयर एंड ही वॉज सर्विंग देम फेथफुली। पिछले कितने सालों से एम हैमिल वहाँ पे था, 40 सालों से था, उनकी वफादारी से सेवा कर रहा था, अभी उनको बच्चों को पढ़ाता था, सब कुछ करता था। वो लोग एम हैमिल को थैंक यू बोलने के लिए आए थे, और केवल थैंक यू बोलने के लिए नहीं आए थे, इट वॉज देयर वे टू शो देयर रिस्पेक्ट टुवर्ड्स द कंट्री दैट वॉज देयर्स नो मोर। ये उनका उस कंट्री के प्रति अपने रिस्पेक्ट शो करने वाले थे जो अब उनका नहीं रहने वाला था। मतलब कौन सा कंट्री, फ्रांस, क्योंकि ये अब ये यहाँ पे कल से पूरी तरीके से ये क्या बन जाने वाला था, जर्मन, जबकि ये लोग बाई हार्ट अब क्या थे,
फ्रांसीसी थे, तो उस फ्रांस के प्रति अपने रिस्पेक्ट को शो करने आए थे जो अब उनका कंट्री नहीं रहने वाला था। तो अब उसे सब कुछ समझ में आ गया कि हमें ये ड्रेस इसलिए पहनी है क्योंकि वो लास्ट लेसन को रिस्पेक्ट देना चाहता है, विलेजर्स इसलिए आए हैं क्योंकि वो सॉरी फील कर रहे हैं, वो थैंक यू बोलना चाहते हैं और वो अपना रिस्पेक्ट शो करना चाह रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें उसे क्लियर हो गई। आज यहीं तक रखेंगे।